Good morning. In the last class, we have started new chapter, organizational management. Okay, so our journey had started from understanding management to certain functions like work study, motion study, and how a particular job is done. Then we came across maintaining quality and understanding quality. Okay, and then we also discussed production planning and control. So now we will be coming to what is an organization and why an organization is important. Okay. So every organization is made in order to focus on a particular subject or a particular work. Okay. An organization is a place where some people or a number of people come together to work on a particular goal and work on a particular aim. Okay, the main objective behind an organization is to bring a system, is to create a system of working. Okay, without an organization a system cannot exist. Okay, so if we try to define an organization, it is an identified group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called organization. Okay, so attainment of goal is there is certain goal, certain specific objective based on which people work. Okay, if we see the functions of an organization, the functions of an organization are not that difficult to understand. It is actually determination of activities in an organization. People are focused on a particular set of work, particular set of job, and they strictly confined to that particular instructions. Then there is group activity, then there is allotment of duties. Duties are allocated to people. Okay, certain people are allocated certain jobs within that organization, and specific specialization is encouraged. Specific specialization is encouraged मतलब कि जो जिस काम का स्पेशलिस्ट है उसको उस तरह का जॉब दिया जाता है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज देयर. अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, विभाजन होता है, किसका क्या अथॉरिटी है. डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इनकरेजमेंट ऑफ टीम वर्क होता है. विदाउट टीम वर्क एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है. फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर. देयर हैज़ टू बी डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, कि जो एक पर्टिकुलर काम को उसको तोड़ा जाता है सर्टेन स्मॉल टास्क्स एंड द वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंगली. कोऑर्डिनेशन इज देयर अमंग डिफरेंट पीपल. देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए कि कौन किसका ऑथोरिटी है और किसका क्या जिम्मेदारी है, वो डिफाइंड होना चाहिए. उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन शुड बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन among the peers, among the workforce, either upward communication or downward communication. Upward communication मतलब है कि lower level of a hierarchy to higher level of the hierarchy, और या फिर higher level of the hierarchy to lower level of the hierarchy. Communication must be clean, precise and to the point. So what are the advantages of organization? Advantages of organization is the basic main advantage is that there is a structure which gets created. Without an organization, अगर organization नहीं है, अगर संगठन नहीं होता है तो स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा और हेल्पर्सट काम होगा. किसी को भी कुछ भी काम करने का मन हुआ वो किया. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स एन स्ट्रक्चर एंड यूनिफॉर्मिटी टू द वर्क प्लेस, टू द वर्क. ओके, सो देर इज कोऑर्डिनेशन, देर इज लर्निंग इज देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन देर इज नो लर्निंग. आप लोग जब कहीं नौकरी करोगे तो मांगा जाता है कि एक्सपीरियंस है, काम का एक्सपीरियंस है कि नहीं. आप लोगों को पूछा जाता है, किसी को भी पूछा जाता है काम का एक्सपीरियंस क्यों पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप एक संगठन में काम किए हैं तो आपका जो नॉलेज होगा वो जो काम नहीं किया है उससे बेटर होगा, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इट एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड रिसोर्सेज. एंड मेन थिंग, वन मोर थिंग इज देयर दैट
through an organization, if the better the organization, the better the quality and of the प्रोडक्ट और सर्विसेज. ओके, आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट यूज़ करो या सर्विस यूज़ करो तो उसके बेटर होते हैं rather than स्मॉल और मीडियम लेवल ऑर्गेनाइजेशंस. Okay, so there are basically roughly two types. There are lots, actually, lot of different types of organization. We'll discuss in the next class. But there are basic two types of organizations. One is formal organization and one is informal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जिसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, एक ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर उसमें मेंटेन होता है, उसमें हायरकी पता रहता है. हायरकी मतलब क्या है कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है और कौन किसका सुपीरियर है. तो देयर इज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, और वो स्ट्रक्चर अगर फॉलो होता है तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है. सपोज कहीं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, उसके नीचे सीनियर मैनेजर्स हैं, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, उसके नीचे जूनियर मैनेजर्स हैं. देयर इज़ ए प्रॉपर स्ट्रक्चर. बट देयर इज़ वन मोर स्ट्रक्चर विच वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एंड योर सीनियर मैनेजर एंड द मैनेजर ऑफ ए डिफरेंट डिपार्टमेंट, इन तीनों के जो सिस्टर्स हैं या इन तीनों के जो ब्रदर्स हैं वो एक ही स्कूल में जाते हैं. तो व्हेनेवर यू गो टू दैट स्कूल यू सी देम, देन यू से हेलो सर, अब कैसे हैं, आप यहाँ आए हैं, ठीक है. या फिर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और जो आपका है, आप लोग एक ही मार्केट प्लेस में जाते हो सब्जी लेने, तो वहाँ पे आप लोग मिलते हो, ठीक है. या फिर आप लोग एक क्लब के मेंबर हो, स्पेसिफिक क्लब के मेंबर हो, जहाँ पे आप लोग हर सैटरडे नाइट को जाते हो और वहाँ पे मिलते हो. ज़रूरी नहीं कि वो आपका सीनियर है, ऑफिस में भले वो आपका सीनियर नहीं है, या फिर ऑफिस में भले वो आपके डिपार्टमेंट का नहीं है, ठीक है. ऑफिस में भले उससे आप बात भी नहीं करो क्योंकि आप लोग का ऑफिस अलग अलग है. बट व्हेन यू गो टू दैट क्लब और व्हेन यू गो टू द स्कूल और व्हेन यू गो टू द जिम, यू मीट हिम. So those kind of organizations are informal organizations. Those organizations are also very important and very critical. Okay, informal organization means that when a particular structure is not followed. Okay, but there is a organization. Organization means there is a involvement of people. Okay, so now we will try to understand that what are the characteristics of a formal organization. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो प्रॉपरली प्लान्ड होता है, उसका बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एंड द यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन. यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन मीन्स दैट देयर इज स्ट्रिक्टली इट इज मेंटेन दैट हु इज सुपीरियर टू whom and who is junior to whom and whose command and whose responsibility will be followed. However, in informal organization, the characteristics are that it is basically a social structure. वो एक सामाजिक स्ट्रक्चर है rather than a organizational structure. ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में कोई जगह नहीं है. आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में ये लिखा नहीं रहेगा कि सीनियर क्लर्क का जो बेटा है और सीनियर मैनेजर का जो बेटा है वो दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, उसका एक कोई अलग से चार्ट नहीं बनेगा. ठीक है, तो इट इज़ नॉट ऑफिशियल. ओके, सो एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई हायरार्की मेंटेन नहीं होता है. यू नो, आप ऑफिस में सीनियर और जूनियर हो सकते हो, लेकिन आप सोशल लाइफ में भले आप लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है. या फिर सोशल लाइफ में आप लोग भले भैया हैं या कोई सीनियर है आपसे, और आप लोग ऑफिस में आप लोग कॉलीग्स हैं, एक ही डिपार्टमेंट में एक ही लेवल पे काम करते हैं. ओके, so and one of the most important character of informal organization is that it develops out of habit, out of society, out of culture. जो informal organization होता है वो out of culture, out of habit वो होता है rather than out of necessity. ठीक है, वो आप लोग का जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, उसके बेसिस पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होते हैं rather than necessity and rather than a proper formal structure. Okay, so this is the basic idea behind organization, formal and informal organization. Okay, thank you.